Dear students, previously we have studied some points regarding linear span, linear independence and basis. Right now we start dimension and some other related points on it. Often we say that R1 is a one dimensional, R2 is two dimensional and R3 is three dimensional. Note that 1 is a basis for R1 and E1 equal to 1, 0, E2 equal to 0, 1 is a basis for R2 and E1 equal to 1, 0, 0, E2 equal to 0, 1, 0, E3 equal to 0, 0, 1 is a basis for R3. Similarly, EI is equal to 0, 0, so on 0, 1, 0, so on up to 0, such that I equal to 1, 2 up to n is a basis for Rn, which is called n-dimensional space. We will see that concept of dimension is related to number of elements in a basis. We have example on it. Counting the elements of the standard basis of each of the popular vector spaces, we have dimension r raised to n is equal to n, dimensional of polynomial of n degree equal to n plus 1, dimension of matrix m by n is equal to m into n. Now we want to know some idea about null space, row space and column space of a matrix. We are given m cross n matrix A. We define the column space of A is equal to the subspace of Rn spanned by the columns of A. Its dimension is called rank of A. The row space of A is equal to the subspace of Rn spanned by the rows of A. The null space of A equal to the solution space of Ax equal to 0. It is a subspace of Rn. Its dimension is called the nullity of A. Here you must notice that rank and nullity have a very important result. So you must memorize this result. Let A be an m cross n matrix, then rank of A plus nullity of A equal to n. Another result is dimension of column space of A is equal to dimension of row space of A equal to rank of A equal to number of leading ones in the RREF, means reduced row echelon form of matrix A. Now let A be the m cross n matrix, then we reduce the matrix A to the reduced row echelon form R. Dimensional of column space of A equal to dimension of row space of A equal to rank of A equal to number of leading ones in the RREF of A. The same basis for the solution space of Rx equal to 0 is a basis for the null space of A. Consider the non-zero rows of R. They form a basis for the row space of R. The same basis for the new space of R is a basis for the row space of A. We take the column of R with leading ones. They form a basis for the column space of R. The corresponding column vectors in A form a basis for the column space of A. Now we want to know some important properties of reduced row echelon form. If a row does not have only zeros, then its first non-zero number is a 1. We call this a leading one. The rows that contain only zeros, if they are any, are at the bottom of the matrix. In any consecutive rows that do not have only zeros, the leading one in the lower row is farther right
than the leading one in the row above. Each column that contains a leading one has zeros everywhere else in that column. Now we move to definition of finite dimensional vector space. A vector space V is said to be finite dimensional if there exists a basis consisting of a finite number of elements. Otherwise, V is called infinite dimensional. The dimension of a finite dimensional vector space V denoted by dimension of V is the number of elements in a basis of V. It's a very important point that it is the number of elements in basis of V. Now we have some result as a part of theorem. Let capital V be a finite dimensional vector space, then any two bases of V have the same number of elements. Let dimension of V equal to n, then any linearly independent set of n vectors of V is a basis of V. Now we have some numerical part, and we must have a little bit idea about echelon form in first year. All of you have the idea how to obtain rank by reducing the given matrix into echelon form. So question is that let S equal to set x1 is equal to 1 1 1, set x2 equal to 1 1 minus 1 1, x3 equal to 1 1 0 1, and last set x4 is equal to 1 minus 1 1 1 be a subset of R4. Find a basis of LS. We consider the matrix A and apply row transformation to obtain. एस्लॉन फॉर्म का जो पार्ट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, उसके अंदर आपको मैं मेथड याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी हेल्प लेकर उनके ठीक नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको जीरो बनाना है। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होगी वो आपकी रैंक कहलाएगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस मेथड का मेन पार्ट। आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसके बाद रो ऑपरेशन में जो लीडिंग एलिमेंट्स है अपने डायगोनल एलिमेंट के जो लीडिंग एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं उनकी हेल्प लेकर उनके ठीक नीचे एलिमेंट्स को रो ऑपरेशन से जीरो बनाना है। इसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू रैंक कहलाएगा। तो आप देखिए इस मैट्रिक्स में जो सेट x1 x2 x3 x4 दिए गए हैं, इनको चारों सेट को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखा है कि सेट x1 के एलिमेंट फर्स्ट रो में आएंगे, सेट x2 के एलिमेंट सेकंड रो में आएंगे, सेट x3 के एलिमेंट थर्ड रो में आएंगे, और लास्ट जो आपका सेट x4 है उसके एलिमेंट रो नंबर फोर्थ में लिखे गए हैं। इसके बाद आप ठीक उसके आगे इक्वल साइन में जो नई मैट्रिक्स देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है और उसके ठीक नीचे सभी एलिमेंट 0 कर दिए गए हैं। मतलब ये हुआ कि आपने R2, R3 और R4 में चेंज किया है, 0 बनाया है। हेल्प आपको R1 की मिलेगी, चेंजेस आप R2, R3, R4 में करेंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपने ऑपरेशन लगाया है R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R4 टेंस टू R4 माइनस R1। सभी में आपने सेम एलिमेंट देखा इसलिए वो माइनस करते ही 0 बन गया। ये पहला टास्क हुआ। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में जो आपने 0 0 बनाया था अभी, इस मैट्रिक्स में जो A22 वाला एलिमेंट का जो पोजीशन है वहाँ पर 0 दिख रहा है, वहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट हो तो बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, R2 और R4 को इंटरचेंज करेंगे। R4 में जो एलिमेंट -2 दिख रहा है वो A22 पोजीशन पर आ जाएगा और ये एलिमेंट नॉन जीरो बन जाएगा। फिर इसी एलिमेंट की हेल्प लेकर उसके नीचे जो एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे हम 0 बनाएंगे। तो आपको एस्ट्रॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कंक्लूजन ये है। तो देखिए आप फाइनली जो पहुँच रहे हैं
इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले 1, तो ठीक उसके नीचे एलिमेंट 0 है। फिर मैंने बोला A22 जो -2 है तो उसके ठीक नीचे एलिमेंट सभी 0 है। फिर मैंने कहा A33 वो यहाँ पर -1 है तो उसके ठीक नीचे फिर एलिमेंट 0 है। और लास्ट में जो आ रहा है A44 वहाँ पे ऑलरेडी 0 है, उसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो बस इतना ही अपने को वर्क करना है। आप देखेंगे यही एशेलॉन फॉर्म है। एशेलॉन फॉर्म कैसे? डायगोनल एलिमेंट के ठीक नीचे एलिमेंट रो ऑपरेशन से 0 बनाए जा चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे इन चारों रो में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो तीनों फर्स्ट 3 रोज हैं वो नॉन जीरो है। तो रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो मीन्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम आगे कंक्लूजन पे आएंगे। हैंस हियर 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट and they also span S because each vector xi where I equal to 1, 2, 3, 4 can be represented as a linear combination of these 3 non-zero vectors of V. Therefore 1, 1, 1, 1, then 0, -2, 0, 0 and third row 0, 0, -1, 0 is a basis of LS. यहाँ बेसिस वर्ड यूज़ करना है, बेसिक नहीं है वर्ड, आप ध्यान रखिएगा, BASIS। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एट लास्ट वी हैव अगेन S इक्वल टू सेट x1 इक्वल टू 1, -2, 5, -3, another set x2 इक्वल टू 0, 1, 1, 4, set x3 इक्वल टू 1, 0, 1, 0। क्वेश्चन इज दैट फाइंड अ बेसिस ऑफ LS and extend it to a basis of R4। आप देखेंगे अगेन आपने सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखना है इन सेट को लेकर। तो आप देखेंगे सेट x1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने फर्स्ट रो में लिखा है, सेट x2 के एलिमेंट को आपने सेकंड रो में लिखा है, सेट x3 के एलिमेंट को आपने थर्ड रो में लिखा है। इसके ठीक बाद आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट करेंगे। और उसका मतलब जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में सीखा आपने कि सबसे पहले जो A11 पोजिशन है वहाँ पर एलिमेंट 1 आया हुआ है, तो उस A11 की वैल्यू जो 1 है उसके ठीक नीचे एलिमेंट्स को 0 बनाना है रो ऑपरेशन से। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, 1 के नीचे दोनों 0 आ चुके हैं बाई रो ऑपरेशन। इसके बाद अगला जो एलिमेंट होगा वो होगा आपका A22 जिसका वैल्यू इसी मैट्रिक्स में 1 दिख रहा है। अब आप इस A22 इक्वल टू 1 की हेल्प लेकर नीचे जो एलिमेंट है 2 उसको आप 0 बनाएंगे। यही वर्क करना है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इसके बाद -4 आएगा A33 पे, लेकिन उसके नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमें कोई एफर्ट कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इतना ही वर्क करना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका फाइनल फॉर्म बनता है। फर्स्ट रो में 1, -2, 5, 3, सेकेंड रो में 0, 1, 1, 4 और थर्ड रो में 0, 0, -6, -5। और क्या खास बात आप यह देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में जो A11 है उसके ठीक नीचे 0 आ गया, A22 के नीचे फिर 0 आ गया। इतना ही करना था क्योंकि यही एशेलॉन फॉर्म बनता है। अब जब एशेलॉन फॉर्म बना तो हमें रैंक पता करनी है। तो आप देखेंगे आपने जो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया यानी डायगोनल एलिमेंट के ठीक नीचे 0 बनाया रो ऑपरेशन से, तो ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें 3 रो हैं, तीनों ही रो नॉन जीरो है, तो आपका रैंक होगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो दैट इज़ 3। अब उसके आगे चलते हैं एंड द सेट 1, -2, 5 एंड 3। ये करेक्शन देखिएगा एग्जैक्टली जो मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट रो है वो लिखना है, यहाँ माइनस प्रिंटिंग रॉन्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 0, 1, 1, 4 और उसके बाद 0, 0, -6, -5 इज अ बेसिस ऑफ द LS। यहाँ पर बेसिस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा टू एक्सटेंड इट टू अ बेसिस ऑफ R4 वी नीड अ वेक्टर ऑफ द फॉर्म 0, 0, T वेयर T नॉट इक्वल टू 0। इस बात को ज़रा समझें आप कि आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है किसके लिए, बेसिस ऑफ R⁴ यानी 4 डायमेंशन के लिए। तो आपके पास 3 रो दिया हुआ है, चौथा रो आप अगर अप्लाई करते यहाँ पे इन्वॉल्व करते इंक्लूड करते तो वो क्या हो सकता था। चूँकि हमें एशेलॉन फॉर्म में ही चलना है, रैंक को 3 बनाए रखना है, उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे एलिमेंट सब 0 बने। तो इस पोजीशन में बनेगा 0, 0, 0, T। यहाँ पर T नॉन जीरो वैल्यू है। तो ये जो मैं 0, 0, 0, T बोल रहा हूँ, आप इसको इमेजिन करेंगे 4th रो के लिए इस मैट्रिक्स में, तभी ये आपका रैंक 3 बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने T की वैल्यू 1 ले ली है तो बना 0, 0, 0, 1।
तो ये जो टर्म है वो बिलोंग्स टू R4 है। तो अब आपका जो सेट है 1 -2 5 3, ये -3 नहीं है, करेक्शन रखिएगा, ये है 1 -2 5 3, ये जो मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो वही बोल रहा हूँ मैं। फिर 0 1 1 4, फिर 0 0 -6 -5, और लास्ट चौथा रो जो हमने अभी इन्वॉल्व किया है वो बन गया 0 0 0 1 is linearly independent and dimension of R4 is equal to 4। ये 0 नहीं लिखना है, ये 4 है। आप इसको करेक्शन को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। टोटल आपके यहाँ पर 4 रो आ गई हैं और चारों ही नॉन जीरो हैं, तो आप बोलेंगे डायमेंशन ऑफ R⁴ यानी R4 is equal to 0। सो द सेट बिकम्स अ बेसिस ऑफ R⁴। ये एक कन्फर्म एग्जाम्पल है इसके लिए। तो आप इन एग्जाम को थोड़ा अच्छे से दोनों को रिवाइज कर लें। ये आपका एस्ट्रोन फॉर्म का भी पार्ट रिपीट करवा रहा है फर्स्ट ईयर का, और साथ ही नया जो कंसेप्ट है LD LI का, उसके बाद फिर बेसिस का, फिर आपका फाइनाइट डायमेंशनल का, वो सब इसमें कवर होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ढंग से आप जान लें, कोई डाउट हो अपडेट करें, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे लेंगे। थैंक यू।